Hello students, I am Shubhajit. Today we will discuss about miscellaneous type of mensuration. हम लोग दो पार्ट में इसको करेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल mensuration, ताकि किसी भी तरह की स्टूडेंट्स के लिए ये हेल्पफुल रहे. तो लेट्स स्टार्ट. First question is given here. The difference between the outside and inside surface of a cylindrical metallic pipe which is 14 centimeter long is 44 centimeter square. स्लाइड में क्वेश्चन आ रहा होगा, तुम लोग देख सकते हो. सिलिंड्रिकल पाइप जिसका एक आउटर रेडियस भी है, मतलब एक हॉलो सिलेंडर रहेगा, तो आउटर रेडियस इज वी आर टेकिंग outer radius capital R and small inside radius is smaller r, and the height of the cylinder is given here 14 centimeter, right? And given that इसका जो inside सरफेस है और जो आउटर सरफेस है, दोनों का डिफरेंस जो होगा, मतलब दोनों सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का जो डिफरेंस रहेगा वो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है. कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का? दिस इज 2 पाई आर एच, राइट? 2 पाई आर एच, वेयर आर इज द रेडियस एंड एच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर. तो what we have to do here, the difference given means here one terms will come, capital R minus small r, which is known as thickness, right? Which is known as thickness. That means according to the given question we can write that by the problem 2 pi capital R h minus 2 pi small r h, this is given 44 centimeter square. In the question this is given. So what we can write over here, 2 pi 22 by 7 and taking h common, this is 14 centimeter. We can write capital R minus small r, this is equals to 44. So 2 into 22, 44, 44 will be cancelled out, 7 and 14, this is 2. So R minus capital R minus small r will be half, right? This is our first equation. And another statement is given that, pipe is made of 99 centimeter cube of metal. That means the volume of this cylindrical portion is given 99 centimeter cube. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला एक सिलेंडर के लिए होता है पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर एच. बट यहाँ पे हॉलो सिलेंडर है, तो यहाँ पे R के जगह हम लोग जो लेंगे वो होगा थिकनेस. दिस टर्म कैपिटल R माइनस स्मॉल r, दिस इज द thickness, right? That means pi 22 by 7, instead of r square we will take this, and h is 14 centimeter, this is equals to 99. 11 से अगर हम कैंसिल करें 2 और इधर आएगा 9, 7 से 2 times, that means capital R square minus small r square will be 9 by 4, 9 by 4. and इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं a square minus b square के टर्म पर, तो r plus r into r minus r, this is equals to 9 upon 4. This is equals to 9 upon 4. And from number 1 equation we are getting a value capital R minus small r. उसको अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे into half, this is equals to 9 by 4, 2 cancel out, here will be capital R
plus small r will be 9/2. This is our second equation. So this is our first equation. This is capital R minus small r equals to half, and from here we are getting capital R plus small r equals to 9/2. Adding these two equations, we can easily get capital R, which is the outer radius. So by adding first and second equation, we can write this R and R will be cancelled out. So twice of R will be equals to half plus 9/2. This is 2R 10/2. 2 2s are 5. That means twice of R will be equals to 5. R will be equals to 2.5. So in this question, एक चीज पता चला हम लोगों को, जब आउटर रेडियस और इनर रेडियस करके रहेगा, मतलब वहाँ पे चाहे सिलेंडर हो चाहे स्फीयर हो, वहाँ पे थिकनेस के बारे में बात कर रहा होगा, तो तुमको थिकनेस निकालना पड़ेगा दोनों आर यूज करके. कैसे थिकनेस, मतलब from that particular point to this will be the outer radius, and inner radius मतलब होगा just ये portion. I hope this is clear. So move on to next question. मेंसुरेशन से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो इसका बेसिक क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है. अगर बेसिक किसी का क्लियर नहीं है, मेरा पिछला वीडियो कोन का बनाया था, उसको जाके ज़रूर देख लेना, और आगे भी टॉपिक के ऊपर इंडिविजुअल डिस्कशन होगा. बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग अबाउट मिसलेनियस पार्ट, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर. अ सिलिंड्रिकल जार, एक सिलिंड्रिकल जार है, एक सिलिंड्रिकल जार है हुज बेस हैज अ रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर. मतलब इसका जो बेस है, सर्कुलर बेस है सिलेंडर का, जो बेस है उसका रेडियस गिवन है 15 सेंटीमीटर. आर गिवन है 15 सेंटीमीटर ऑफ दिस सिलिंड्रिकल वेसल और जार, वॉट एवर वी कैन से, इज फिल्ड अप विथ वाटर अप टू अ हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर. मतलब यहाँ तक पानी है जिसका हाइट है 20 सेंटीमीटर, इतना फील्ड है. अ सॉलिड आयरन स्फेरिकल बॉल, एक स्फेरिकल बॉल दिया गया है ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, इज ड्रॉप्ड इनटू द जार, इस जार में ड्रॉप किया हुआ है. तो उसके हिसाब से एक चीज हमको सबको पता है कि जब एक सिलिंड्रिकल वेसल है, उसमें वाटर कंटेंट है, तो उसमें अगर कुछ हम लोग डालेंगे तो डेफिनेटली वाटर लेवल राइज होगा. इस लेवल पे वाटर था, शायद इस लेवल तक राइज होगा, एक सर्टेन चेंज होगा. वही बोल रहा है कि फाइंड द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर. मतलब ये कितना, ये जो हाइट है ना, ये कितना इंक्रीज किया है, इसके बारे में बात कर रहे हैं. तो क्वेश्चन इज गिवन, मतलब क्वेश्चन इज क्लियर टू यू आई थिंक, कि हेमिस्फेरिकल बॉल डाला गया है उसके अंदर, तो वाटर लेवल राइज किया है, तो कितना वाटर लेवल राइज करेगा. सिंपल क्वेश्चन, वाटर लेवल कितना राइज करेगा, ये स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा उसके हिसाब से ही वाटर लेवल इंक्रीज करेगा. पहले यहाँ था जो सिलेंडर डाला गया, मतलब स्फीयर डाला गया है, उस स्फीयर के वॉल्यूम के हिसाब से ही, स्फीयर का वॉल्यूम जितना होगा उतना ही इंक्रीज करेगा लेवल. वही करना होगा हम लोगों को. मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि लेट द हाइट इज इंक्रीज्ड बाय h सेंटीमीटर, राइट. मतलब ये जो साइड है 8 सेंटीमीटर इंक्रीज किया है हाइट, तो ये जो इंक्रीज्ड पोर्शन का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, ये स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा. स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है एक स्फीयर का वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब. दैट मीन्स दिस 4/3 पाई आर क्यूब क्या रहेगा, 10 क्यूब. दिस इज द volume of the sphere, and that means water level will be increased by that much of volume.
तो अकॉर्डिंग टू सिलेंडर उसका वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर एच, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर एच। आर कितना है, आर तो 15 सेंटीमीटर ही होगा, उस पोर्शन का भी आर तो 15 सेंटीमीटर ही होगा, और एच जो होगा वही तो हम लोगों को निकालना है, मतलब पाई दिस इज 15 स्क्वेयर इंटू एच। ये रिलेशन हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं इसमें से डेफिनेटली, क्योंकि जितना स्फीयर का वॉल्यूम जितना होगा वही उतना ही लेवल और उतना ही वॉल्यूम वाटर लेवल का इंक्रीज करेगा, तो इसके हिसाब से हम लोग ये इक्वेशन लिख सकते हैं। सो लेट्स सॉल्व इट। पाई पाई विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम बोथ द साइड एंड दिस 10 सेंटीमीटर क्यूब, एंड सो h इक्वल्स टू what, h इक्वल्स टू 15 by 15 इंटू 3 एंड ऊपर में रहेगा इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 क्यूब को हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं और इंटू 4। सो 5 3s are 5 2s are 5 2s are 5 3s are, that means it's coming 10 40 42s are 82s are 160, and this is 27. That will be the answer. On to the next problem. A cylinder whose height is equal to its radius. On cylinder, its height is equal to its radius. So let it be r both cases. Is full of milk. पूरा भरा है. Its milk is poured into a hemispherical bowl of same radius. मतलब यहाँ पे जो मिल्क है उसको एक हेमिस्फेरिकल बोल में हम लोग रख रहे हैं, ऑफ सेम रेडियस एज सिलेंडर, मतलब इसका भी रेडियस r, एंड रिमेनिंग मिल्क इज पोर्ड इनटू अनदर हेमिस्फेरिकल बॉल. एक और हेमिस्फेरिकल बॉल है, इसमें रिमेनिंग मिल्क डाला गया है ऑफ सेम वॉल्यूम एज द प्रीवियस वन, मतलब ये दोनों का वॉल्यूम सेम है. What percent of volume of second hemispherical bowl remained empty, मतलब हेमिस्फेरिकल बोल में कितना empty रहेगा पूछ रहा है, और ये तो पूरा भरा है. तो definitely what we have to do, we have milk in this cylindrical container. So what we have to do, the volume of the total milk over here will be equals to the volume of milk in these two hemispherical jar, right? That means volume of milk in cylinder क्या होगा, that will be, cylinder का volume क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच होता है ना, तो मिल्क का ही वॉल्यूम वही रहेगा पाई आर स्क्वेयर एच, और h is equals to r, that means we can say this is pi r cube. That means we have pi r cube of volume or unit centimeter, unit 5r pi r cube of volume of milk is given over here in cylinder. Now what we have to do, we have to transfer this milk into these two containers. In first hemispherical bowl it will be full filled. हेमिस्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम क्या होता है, एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 8/2 होगा. एक हेमिस्फीयर मतलब क्या, एक स्फीयर का आधा, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब बाई 2, दैट मीन्स 2/3 पाई आर क्यूब. इतना ही वॉल्यूम का मिल्क फर्स्ट कंटेनर में रहेगा, तो रिमेनिंग कितना रहेगा तुम्हारे पास, तो ऑलरेडी यू हैव पाई आर क्यूब क्वांटिटी ऑफ मिल्क, वॉल्यूम ऑफ मिल्क, एंड उसमें से 2/3 पाई आर क्यूब ऑफ मिल्क ऑलरेडी फर्स्ट कंटेनर में है, तो रिमेनिंग कितना है, अनदर 1/3 पाई आर क्यूब रिमेनिंग है, 1/3 पाई आर क्यूब मिल्क रिमेनिंग है जो हम लोग सेकेंड वेसल में रखेंगे. तो सेकेंड वेसल में कितना मिल्क है, सेकेंड वेसल में 1/3 पाई आर क्यूब मिल्क है, और सेकेंड वेसल का टोटल वॉल्यूम कितना है,
2/3 पाई आर क्यूब। सेकेंड वेसल का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब है, उसमें से 1/3 पाई आर क्यूब मिल्क उसमें डाला गया है, तो एमटी कितना रहेगा टोटल वॉल्यूम में से, इसको माइनस करेंगे हम लोग, 2/3 पाई आर क्यूब माइनस 1/3 पाई आर क्यूब, तो बचेगा कितना, सिर्फ 1/3 पाई आर क्यूब रिमेनिंग रहेगा। दैट मीन्स एम्प्टी रहेगा 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर क्यूब पार्ट इज रिमेनिंग इन द सेकेंड वेसल। एंड तुमको क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेकेंड हेमिस्फेरिकल बॉल रिमेन्ड एम्प्टी। टोटल वॉल्यूम कितना था, 2/3 पाई आर क्यूब, टोटल वॉल्यूम था 2/3 पाई आर क्यूब, उसमें से 1/3 पाई आर क्यूब एम्प्टी है, मतलब आधा एम्प्टी है। दैट मीन्स आंसर विल बी 50%। 2/3 टोटल वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, द सेकेंड हेमिस्फीयर, उसमें से 1/3 पाई आर क्यूब एम्प्टी है, तो टोटल 2/3 उसमें से 1/3 एम्प्टी है, तो कितना एम्प्टी होगा, 50% एम्प्टी होगा, 50% फील्ड होगा। सिंपल।